Assalamualaikum everyone. We are going to wait for the rest of the participants to join and then we will start with the webinar. काम बहुत आगे तक आप सब पहुंच चुका है। आप साहब काश आप इस बात को समझ जाएं कि हम हर लड़की से शादी नहीं कर सकता कभी।
Good evening, everyone. Am I audible to you all? Yes, you are. So, Assalamualaikum and good evening, everyone. This is your moderator for today's webinar, Noorland, and I am a student of third year MBBS here at FMH College of Medicine and Dentistry. And also, I am one of the core team member of Center for Health Sciences and Research. And also, I am serving as a deputy convener for the term 2023 and to 2024. Thank you. First of all, thank you for joining us today for this highly anticipated webinar on reference manager. And basically, this session comes as a direct response to the request which we received after our LT webinar, which was our first on-site activity organized by CHSR. And it's clear that many of you are eager to deepen your understanding and skills. And we are thrilled and excited to come up with this newly organized webinar by CHSR. Moving onwards, we are honored to welcome our guest speaker for today, Muhammad Nabil Siddiq, to our webinar today. He is a student of King Edward Medical University and a highly accomplished researcher with an impressive portfolio of achievements. With 7 publications and over 10 abstract submissions at national and international conferences, his abstract has been accepted at prestigious conferences such as European Society for Medical Oncology, the European Headache Conference, and the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, with an impact factor of 51.7. His proficiency extends to a range of advanced medical tools such as Zotero, EndNote, Review Manager, Meta Excel, OpenMeta, JAMA-V, and the list goes on. His extensive knowledge and experience make them a valuable resource for anyone who wants to learn citation and referencing in their research. And talking specifically about the today's webinar, our main focus will be on teaching Zotero. Although there are a lot of reference manager in the market, but mainly we will be teaching Zotero because it's efficient. And please join me in welcoming our guest for today's webinar. And let's start with this. Over to you, Nabil. Thank you so much for this overwhelming introduction. I'm truly honored to be here uh, with you guys. Thank you very much, Center for Health Sciences and Research, FMH College, and their whole team for this amazing webinar. So जो आज हम डिस्कस करेंगे mastering the citations, we will discuss about the softwares that are used for citations and reference management. उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे साइटेशंस रेफरेंस के साथ कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम उनकी इम्पोर्टेंस को तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम एक प्रैक्टिकली एक सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, Zotero को, एंड देन उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, उसके प्रोस एंड कॉन्स, एंड देन की टेक अवे मैसेजेस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर and other things as well. Please let me know in the chat box if I am audible and my screen is visible. Please let me know, my coordinators, if everything is okay so that I may start. Yes, Nabil, your screen is visible and you are audible. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. उम्मीद है आप सब रेफरेंस मैनेजमेंट से या साइटेशन से थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। जिन लोगों ने कभी किसी आर्टिकल में काम किया होगा, मे बी उन्हें आइडिया हो कि रेफरेंसेस एंड साइटेशंस क्या वर्थ एंड वैल्यू है, एंड देन आपको तब पता चलता है रेफरेंस, एक इफेक्टिव रेफरेंस मैनेजमेंट का, जब आप पूरा पेपर लिख लें और आपको पता चले कि आपने रेफरेंस मैनेजर से रेफरेंसेस ऐड नहीं किए, एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट और ऐड अ न्यू रेफरेंस इन द मिड वे ऑफ योर पेपर, तो आपको सारे रेफरेंसेस की नंबरिंग एटसेट्रा स्टाइल वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और हैक्टिक इफ़ यू ऐड रेफरेंसेस मैनेज मैनुअली। तो रेफरेंस मैनेजमेंट फास्ट एंड इफेक्टिव टूल है जिससे आप अपनी टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं और स्टाइल्स को भी मैनेज कर सकते हैं, और आप अल्टीमेटली जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट की। एंड देन इसमें और भी बड़े अमेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिनका प्रैक्टिकल से ताल्लुक है, बाकी में भी जो थ्योरेटिकली चीज़ें तो डिस्कस करते रहे वो ख़त्म नहीं होंगी।
जो आज का हमारा साइट सेशन है इसकी इसमें हम इंट्रोडक्शन रेफरेंस मैनेजमेंट का Zotero को हम क्यों यूज़ करेंगे, वो विल मेनली फोकस ऑन द Zotero. Although there are many softwares in the market as well which are paid and free as well, but हमारा मेन फोकस Zotero के ऊपर होगा. और Zotero के ऊपर हमारा फोकस क्यों होगा ये हम डिस्कस करेंगे. देन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगी. एक छोटा सा कंपैरिजन भी इसमें हम ऐड करेंगे कि हमने Zotero को क्यों रखा है एट द टॉप ऑफ लिस्ट, और हम इस पे अपना जो सारा वर्क फ्लो है इस पे क्यों शिफ्ट किया है. एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इफेक्टिव रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए. देन क्वेश्चन आंसर सेशंस. सो रेफरेंस मैनेजमेंट बेसिकली क्या है. रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है रिसर्चर्स के लिए जिसमें आप अपने डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और साइट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. लाइक कि जब भी आपने किसी आइडिया को, किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी आर्टिकल से लेना है तो आपने उस ऑथर को, उस टीम को क्रेडिट करना है, जो कि रिसर्च इंटेग्रिटी और एथिकली जो करेक्ट चीज़ है. कि जहाँ से आपने कोई आइडिया लिया है, आल्दो आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी विच इज़ प्लेजरिज्म. You are taking some ideas from an article. तो एथिकली ये आपका कंसर्न है, आपके लिए ऑब्लिगेशन है कि आप उस जो उसका ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट करें अपने आर्टिकल में, विच इज़ साइटेशन. और अल्टीमेटली जो साइटेशंस हैं किसी जो ऑथर है उसकी पॉपुलैरिटी का, उसकी जो उसका वर्क है, उसकी वर्थ की एक मेजरमेंट तो हम साइटेशन से कर सकते हैं. ऑल्दो ये कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिवली मार्केट वैल्यू अगर देखी जाए तो जो साइटेशंस हैं दे अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑथर, उसकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, वर्थ एंड वैल्यू के उसका वर्क कितना क्रेडिबल है. अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जो ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द नॉलेज है, जिसने किसी चीज़ को मेहनत के बाद प्रोड्यूस किया है, किसी फैक्ट को मंजर आम पे लेके आए हैं, तो हम उस फैक्ट को तस्लीम करें, उस ऑथर को क्रेडिट करें. उस ऑथर को अपने वर्क में क्रेडिट करने के लिए हम उसके वर्क को I think Nabil has lost his connection. Let's wait for him to join the webinar. Don't worry, guys. He will start from where he left. So don't worry regarding that. आई एम सॉरी फॉर द ग्लिच, मे बी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था. होपफुली नहीं होगा. अगर कोई इशू हो तो मुझे फौरी बता दीजिएगा सो दैट हम उस पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे. although द मीटिंग इज रिकॉर्डेड, अगर कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है इन केस, तो यू कैन एक्सेस बाय कॉन्टेक्टिंग द एडमिन्स. सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी आपने किसी आइडिया को किसी आर्टिकल से लेना है तो आपने उसके जो प्राइमरी ऑथर है जिसने उस नॉलेज को, उस फैक्ट को क्रिएट किया है, आपने उसको साइट करना है, सेकेंडरी सोर्सेज को साइट नहीं करना. तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइटेशन, ये कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं एज ए राइटर, आपने क्या करना है क्या नहीं करना. बट हमारा आज का जो टॉपिक है वो रेफरेंस मैनेजमेंट के ऊपर कि हमने मैनेजमेंट क्या करनी है. इसके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ द रेफरेंस मैनेजमेंट या साइटेशन, विच इज़ नोन एज गुड साइटेशन बिहेवियर बाय वेब ऑफ साइंस एकेडमी. तो आप उसमें से देख सकते हैं उसको. तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, साइट करेंगे और अपने वर्क को शेयर करेंगे. रेफरेंस मैनेजमेंट के जरिए हम अपने टाइम को बचाते हैं, एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं. बिकॉज जब ये सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं थे तो हम सारे जो रेफरेंसेस हैं वो मैन्युअली ऐड करते थे, तो उसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं.
तो अल्टीमेटली हमने ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की तरफ आए हैं जिससे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा मसला टाइम का है, दूसरा एक्यूरेसी का मसला है। तो बिकॉज जब ये रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके पास जो क्वालिटी है और जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप नंबरिंग की कर रहे हैं, आप करके देख लें एक दफ़ा तो आपको लग पता जाएगा कि रेफरेंस मैनेजमेंट मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं, लाइक सॉफ्टवेयर के अलावा आप जो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे आप जो साइट स्टाइल्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उसकी क्रेडिबिलिटी तो है, बट ऑल दो फिर उसकी एक्यूरेसी का मसला आ जाता है। जब आप अपने उसको डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं देन उसमें मिस्टेक्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए हम रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर रिलाई करते हैं जिनसे हम एक्यूरेटली विदाउट एनी प्लेजरिज्म और स्ट्रीमलाइन। बाकी सॉफ्टवेयर्स का ये भी मसला है कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यू आर राइटिंग अ होल मैन्युस्क्रिप्ट बाय योरसेल्फ, तो यू नीड टीम। तो आपने उस टीम में जो अपना वर्क है उस वर्क को आपने पूरे का पूरा कोलैबोरेट करना है टीम के साथ। लाइक 2 or 3 people आर राइटिंग। तो इफ़ यू हैव अ प्लेटफॉर्म जिसमें सारी आपके पास इसमें मसला आ जाता है कोलैबोरेशन का, टीम कोलैबोरेशन का, तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल, लाइक ज़ोटैरो में आप अपनी टीम के साथ इफ़ यू आर वर्किंग विद 3 or 4 people तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसके साथ जितने भी आर्टिकल्स आप साइट करेंगे वो सारे लोगों के पास लाइब्रेरी शेयर हो जाएगी। इवन अगर आपके पास ज़ोटैरो है, आपने ज़ोटैरो से साइटेशन ऐड की हैं एंड देन आपने वो डॉक्यूमेंट किसी फ्रेंड को सेंड किया है और उसके पास भी ज़ोटैरो का सॉफ्टवेयर है, तो जब वो रेफरेंसिंग करेंगे तो सारे की सारे रेफरेंसेस आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और जो नंबरिंग है वो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मीन्स के इसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे। मल्टीपल पीपल एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, विद मच एक्यूरेसी। बिकॉज आपके रेफरेंसेस में अगर इश्यूज हैं तो यू मे गेट अ पीयर रिव्यू कमेंट, तो आपने उसको भी अपने जहन में रखना है। रेफरेंस स्टाइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फंक्शंस जो हैं इसके कलेक्ट करते हैं हम बेसिकली डिफरेंट डेटाबेसेस से हम कलेक्ट भी करेंगे कि हम कैसे पबमेड, एमबेस, स्कोपस एटसेट्रा क्लिनिकल ट्रायल से अपने आर्टिकल्स को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हर आर्टिकल के लिए डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं, हर आइडेंटिफायर से हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम आर्टिकल को पीडीएफ के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, देन साइट करना उसको एंड देन बिब्लियोग्राफी और द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस क्रिएट करना है। तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस। इन टेक्स्ट साइटेशन इम्प्लाई करती है एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने स्मॉल इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स दी हैं आर्टिकल की, विच इम्प्लाइज कि आपका जो होल आर्टिकल है उसकी सारी डिटेल्स क्या है, लाइक उसके ऑथर्स, उसके पब्लिशर, ईयर, इवन वॉल्यूम, पेज एंड इशू नंबर्स एंड समटाइम्स डीओआई लिंक एटसेट्रा आर आल्सो गिवन। तो जो डिटेल्ड आर्टिकल के बारे में इन द बिब्लियोग्राफी लिस्ट आपके पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं, दिस इज रेफरेंस। एंड द जो थोड़ी सी डिटेल्स है लाइक कुछ स्टाइल्स में कुछ फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, ईयर एंड पेज एटसेट्रा आ जाता है एएमए, एपीए एटसेट्रा में, एएमए में। इसके अलावा एपीए एंड देन कुछ स्टाइल्स हैं जिसमें आपके पास जस्ट यहाँ पे नंबरिंग होती है विच मे बी इन द सुपरस्क्रिप्ट, और वैसे ही वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है। तो इन टेक्स्ट साइटेशंस एंड रेफरेंस लिस्ट में दिस इज द डिफरेंस एंड द होल डिटेल ऑफ द रेफरेंसेस यूज्ड इन द टेक्स्ट, इसे बिब्लियोग्राफी हम कहते हैं। हम ज़ोटैरो को क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीन्स है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्हें क्रिएट किया है, इसकी कोडिंग फ्रीली अवेलेबल है। अगर इसमें आपके पास फ्लॉज या बग्स आ जाते हैं तो उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। एनी वन कैन इम्प्रूव द कोडिंग, एनी वन कैन कॉमेंट ऑन द कोडिंग एंड एनी वन कैन रिपोर्ट द बग्स। तो इससे ही कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर इम्प्रूव होते रहते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की तरह उन्हें अपना पूरे का पूरा जो पैकेज है उसको रिवाइज नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज एंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड Zotero is very affordable option because it is totally free. जो इसकी और अच्छी बात यह है कि इट वर्क्स ऑन विंडोज, मैक एंड लिनक्स एज वेल।
जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म या सॉफ्ट सिस्टम अवेलेबल है उस पे आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ब्राउजर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका सबसे बड़ा फीचर्स है, लाइक यू कैन साइट वेबसाइट्स, you can cite anything that you have, like magazines, like websites, like any other PDF जिसके references या authors आपके पास available नहीं है। इवन आप मैनुअली रेफरेंसेस भी जनरेट कर सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स जिन जो कि पीयर रिव्यूड नहीं है, जिनको कोई आइडेंटिफायर नहीं मिला, यानी कि क्रॉस रेफ या अदर गूगल स्कॉलर पे भी वो अवेलेबल नहीं है, आप उसको भी साइट कर सकते हैं। आपका अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट है उसको भी साइट कर सकते हैं थ्रू क्रिएटिंग मैनुअल रेफरेंसेस। ये क्रोम के साथ जोटेरो कनेक्टर इसकी इंटीग्रेशन है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इसके साथ आप कैप्चर कर सकते हैं वेब पेजेस को। देन सफारी और मैकओएस जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें इनकी ब्राउजर इंटीग्रेशन है। उसके बाद आप रेफरेंसेस को क्लाउड सिंक अवेलेबल है इसमें। अगर आप अपने आर्टिकल्स को जैसे ही क्लाउड सिंक करेंगे तो आप अपने आर्टिकल्स को, अपनी लाइब्रेरी को किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब पेजेस। ग्रुप फीचर इसका हम देखेंगे विच इज़ वेरी एक्सीलेंट। तो उसमें आप क्लाउड सिंक कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, जो भी आपकी लाइब्रेरी है आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आर्टिकल अगर स्क्रीन कर रहे हैं थ्रू जोटेरो पर, इजीली आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पास जो फुल टेक्स्ट का ऑप्शन है, वो आप फुल टेक्स्ट फ्रीली ऑटोमेटिकली इसमें जो अवेलेबल हैं वो ऐड हो जाते हैं थ्रू साई हब। तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं है मैनुअली ऐड करने की। इट हैव लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस विच आर डिजाइंड बाय थर्ड पार्टी यूजर्स, जिससे आप अपने एक्सपीरियंस को enhance कर सकते हैं। इट supports over 10,000 citation styles, not hundreds, even 10,000 plus citation styles available हैं on the Zotero, which are free। आप अपना मैनुअली स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड देन ग्रुप लाइब्रेरीज फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च, इसमें ग्रुप्स का ऑप्शन है जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें आप अपने मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। दे कैन एक्सेस योर लाइब्रेरी, दे कैन एनोटेट योर पेपर, दे कैन डू एनीथिंग। तो इसमें भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। की फीचर्स जोटेरो के, ये रेफरेंसेस को सारे आइडेंटिफायर से कैच कर लेता है, लाइक DOI, PMID, PMIC नंबर एटसेट्रा, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम DOI या अदर जितने भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं उनसे किसी आर्टिकल को कैसे ऐड कर सकते हैं जोटेरो। इवन आपके पास अगर कोई PDF डॉक्यूमेंट है, PDF आर्टिकल है, उसको आप ऐड करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली सिंक द डिटेल्स फ्रॉम द आर्टिकल और उस आर्टिकल को उसमें ऐड कर देगा। देन एकेडमिक डेटाबेसेस लाइक पबमेड, एमबेस, स्कोपस, क्लिनिकल ट्रायल एटसेट्रा, जितनी भी लाइक कॉकरेन, जितनी भी डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल हैं उनमें जितनी भी फॉर्मेट्स में डेटा एक्सपोर्ट होता है उसमें आप जोटेरो के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स को, एंड देन अल्टीमेटली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं योर लाइब्रेरी फॉर क्रॉस शेयरिंग। फोल्डर्स, टैग्स एंड सर्च का ऑप्शन है, लाइक यूआर स्क्रीनिंग, तो आप फोल्डर्स बना के या टैगिंग करके अपनी रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग रायान और सम अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक कोविडेंस विच आर डिजाइंड फॉर स्क्रीनिंग आर्टिकल्स एंड डेटा एक्सट्रैक्शन। सो अगर आप इन जोटेरो के यूजर्स रेगुलर यूजर हैं या आपको इजी लगता है तो आप इवन डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए भी जोटेरो को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी स्क्रीनिंग एंड प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए तो बेस्ट है ही। आप इसका सबसे बड़ा फायदा गूगल डॉक्स हैं। गूगल डॉक्स में आप अपनी जो रेफरेंसेस हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और इसको गूगल डॉक टू वर्ड एंड वर्ड टू गूगल डॉक अपने जो भी रेफरेंसेस हैं, साइटेशंस हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास जो एक्टिवेटेड वर्जन ऑफ वर्ड नहीं होता तो वो गूगल डॉक को प्रेफर करते हैं। गूगल डॉक को इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि वो मोबाइल पे काम कर सकें, तो उसके लिए अपने आर्टिकल को आप गूगल डॉक्स में साइट कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल डॉक में साइट करने के बाद अपने आर्टिकल को, अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे एनी ओपन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपके सारे रेफरेंसेस विल बी कनेक्टेड और आप वहाँ से अपना काम, यानी कि कुछ आर्टिकल आपने अपना डॉक्यूमेंट वर्ड गूगल डॉक में लिखा है, कुछ आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखा है, तो आप क्रॉस शेयरिंग कर सकते हैं। इसमें आपकी जो रेफरेंसिंग है, जो कंटिन्यूटी है, एक्यूरेसी है, वो अफेक्ट नहीं होगी इन द लीस्ट। एंड देन जो कि ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ फॉर्मेटेड बिब्लियोग्राफी है। जैसे ही आप सारे रेफरेंसेस ऐड करते हैं, एंड पे जाके आप एक पेज पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे एंड देन जो आपके सारी रेफरेंस लिस्ट है वो वहाँ पे आ जाएगी विद द सेम नंबर्स एटसेट्रा। आप एनोटेट कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर्स को जोटेरो के अंदर ही PDF रीडर है। इसमें डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स हैं,
आप स्टिकी नोट्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर. सम इंटीग्रेशन इवन अलाउ यू टू ट्रांसलेट योर पेपर. एंड देन लाइक ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशंस ऐसे हैं, कुछ पेपर्स हम जस्ट इसीलिए रिमूव कर देते हैं स्क्रीनिंग से कि क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज में होते हैं, जिससे साइंटिफिक मीनिंग चेंज हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. बट कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें हम कंप्लीटनेस ऑफ रिसर्च के लिए, मेटा एनालिसिस के लिए, उसकी कंप्लीटनेस के लिए हम ऐसे आर्टिकल्स को ऐड करना चाहते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज में है लेकिन हमें समझ नहीं लगती. तो आप जस्ट उस आर्टिकल के पीडीएफ को जोटारो में ऐड करके ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन उनको यूज करके अपने आर्टिकल को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें थीम्स वगैरह के ऑप्शन है, वो तो पर्सनलाइजेशन के लिए है, जिसको जो पर्सनलाइजेशन अच्छी लगती है वो कर सकता है. इसमें डार्क मोड वाली पीडीएफ है. देन आपके पास इसका बीटा वर्जन जोटारो का है, विच लुक लाइक्स के जैसे आप iOS आईफोन पे या मैकबुक पे काम कर रहे हैं. देन ये एक छोटा सा कंपैरिजन है जोटारो, एंड नोट और मैंडले का. एंड नोट और मैंडले दे आर वाइडली यूज्ड एंड प्रैक्टिस्ड, बट इनमें और जोटारो में क्या फ़र्क है, हम जोटारो पे ही क्यों काम कर रहे हैं, उसको सारा फोकस क्यों कर रहे हैं. बिकॉज जोटारो आप वेबसाइट्स में विंडोज़, मैकबुक, लिनक्स, iOS और इवन इसके एंड्रॉयड ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिस पे आप जोटारो को यूज़ कर सकते हैं. जो एंड नोट है इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर विंडोज़ एंड मैकबुक. एंड देन जो मेनली है आपके पास ये वेब, एंड्रॉयड और सारा अवेलेबल है, लेकिन मेनली के जो है कुछ चीज़ें कुछ लिमिट्स हैं इसकी, लाइक के इसका लॉगिन वगैरह वाला एंड कुछ और चीज़ें, जिसलिए मेंडली इज़ नॉट वाइडली यूज्ड. इसमें आपका जो स्टोरेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लिमिटेड है, लेकिन जितना आपको चाहिए होता है उसके लिए आप कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर इवन राइटिंग 100 आर्टिकल और उसके लिए आपको 1000 आर्टिकल इंपोर्ट करने हैं इनटू ज़ोटैरो, तो द डेटा इज़ इनफ. बिकॉज आर्टिकल्स किलोबाइट्स में होते हैं एंड एमबीज में होते हैं. यू विल हैव एनफ स्पेस कि आप अपनी मर्जी के आर्टिकल्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं. एंड नोट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये पेड है, या इसका क्रैक वर्जन आप ले सकते हैं. क्रैक वर्जन का ये मसला है, क्रैक वर्जन में जैसे ही न्यू वर्जन आता है आप उसको अपडेट नहीं कर सकते. जैसे ही अपडेट करेंगे आपका प्रीवियस डेटा लॉस्ट हो जाएगा. तो इसलिए क्रैक यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. जो दूसरा वर्जन है इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, तो इसलिए हम एंड नोट को इतना प्रेफर नहीं करते. मेंडली भी इज़ फ्री बट इट इज़ नॉट एज सच वाइडली यूज. एंड देन इसमें वर्ड प्रोसेसर्स के लिए इट हैज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर एंड गूगल डॉक्स वर्ड प्रोसेसर, जो कि एंड नोट या मेंडले में नहीं अवेलेबल. साइटेशन स्टाइल्स को देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबल स्टाइल्स हैं इन ऑल फील्ड्स अदर देन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एटसेट्रा, तो उसके लिए वी हैव 10,000 प्लस स्टाइल्स. इवन वी कैन क्रिएट आवर ओन स्टाइल. इट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टाइल्स बट इसमें बहुत ज़्यादा है, ये कस्टमाइजेबल है. इसके अलावा वी हैव a number of styles in Mendeley as well. Journal, books, web pages and video etc. ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ों को ही इसमें कर सकते हैं. देन वी हैव ग्रुप लाइब्रेरीज हम शेयर कर सकते हैं टीम के साथ. इसका क्लाउड सिंक अवेलेबल है, एंड नोट का भी क्लाउड सिंक अवेलेबल है, बट ये क्रैक वर्जन के साथ आप नहीं काम कर सकते इसमें, और दूसरा वर्जन आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है. ब्राउज़र इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं, सारे ब्राउज़र्स की इंटीग्रेशन जोटेरो के लिए अवेलेबल है. एंड नोट के लिए कोई भी नेटिव आपके पास डेवलपर्स ने जो ऑफिशियली रिलीज़ की हो वो नहीं है. इट मीन्स कि आप वेब पेजेस को आपके लिए इसमें कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है. इसके अलावा आप क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू. जोटेरो सर्विस आप सर्वर आपको अलाउ करता है, लेकिन एंड एंड नोट में आप जब तक आपके पास इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नहीं है आप अपने जो क्लाउड लाइब्रेरी है उसको शेयर नहीं कर सकते. डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं आप जोटेरो में डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट एंड नोट में इट हैज़ सम लिमिटेड ऑप्शन. लाइक के प्रीवियसली एक इशू था क्लिनिकल ट्रायल्स के, जो स्टडीज थी वो एंड नोट में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एंड नोट का एक मैनुअल स्टाइल क्रिएट करना पड़ता था. लेकिन इसके लिए आपको जो जोटेरो है इसके लिए ऐसा ऐसा इशू नहीं है. इट इज़ highly customizable because it is an open source and third parties can develop plugins for it.
अब हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें इसकी इंक्लूडिंग डाउनलोडिंग और बाकी सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। तो सिंपली डाउनलोडिंग का तरीका यही है। सिंपली आपने जोटेरो अपनी गूगल सर्च में ऐड करेंगे तो यू विल सी द फर्स्ट वेबसाइट zotero.org। तो zotero.org पे जाके आप अपनी जोटेरो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका न्यू वर्जन इज़ वेरी सीमलेस और बहुत इफेक्टिव है। अ, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है आप उसके लिए विंडोज़, मैकबुक, लिनक्स या आईओएस के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी थर्ड पार्टी एंड्रॉयड ऐप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ऑफिशियल ऐप नहीं है। ऑफिशियल ऐप विल बी रिलीज्ड सून। तो सिंपली क्लिक ऑन डाउनलोड एंड डाउनलोड फॉर योर कंप्यूटर एज वेल अकॉर्डिंग टू द वर्जन। इसका जो 7th वर्जन है वो सबसे लेटेस्ट है, जिसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। तो इसके अलावा जोटेरो कनेक्टर है विच इज़ अ प्लगइन फॉर योर गूगल क्रोम। इसे क्रोम कनेक्टर भी कहते हैं, जिसके ज़रिए आप गूगल क्रोम, गूगल डॉक्स और अपनी जो वर्ड है उसको आपस में कनेक्ट कर सकेंगे। तो जो भी वर्जन आपको सूट करता है आपके सिस्टम को, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सफारी के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट जो एज कनेक्टर है विच वाज प्रीवियसली नोन एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके लिए भी अवेलेबल है। और इसके दूसरे वर्जन्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। Zotero 6 if you want to open previous version तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड देन Zotero for mobile which is available for iPhone now, but ये Android app is coming इंशाल्लाह। इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपके डेस्कटॉप पे इसका जो आइकन है वो आ जाएगा। क्लिक ऑन दिस। अच्छा जी, इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे, बिकॉज मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, दैट्स वाई ये थोड़ा सा स्लो भी होगा। लेकिन जैसे इसको ओपन करेंगे यू विल हैव अ फाइल ऑप्शन, जिसमें यू कैन ऐड न्यू आइटम, ऐड बाय आइडेंटिफायर, कलेक्शन, न्यू कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट भी हम करेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शंस हैं इन द फाइल्स, एंड देन यू कैन एडिट द फाइल यू आर वर्किंग ऑन। जो आपकी लेआउट है, लेआउट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, लाइक के आर्टिकल्स कैसे कंपैक्टेड नज़र आने चाहिए, ये कंफर्टेबल नज़र आने चाहिए। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एंड देन इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक ब्राउज़र कनेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लगइन्स एंड डेवलपर टूल्स हैं जो नो के, जो जावास्क्रिप्ट कैसे एडिट कर सकते हैं, स्टाइल्स को एडिट कर सकते हैं, ये ट्रांसलेटर को एडिट कर सकते हैं आप। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आप खुद इसमें कर सकते हैं इफ़ यू नो। इसमें आप जो प्लगइन्स हैं प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द प्लगइन ऑप्शन। हम प्लगइन्स भी ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले जो इसके बेसिक ऑप्शंस हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन है। ये जो ऊपर वाला माई लाइब्रेरी है, ये आपकी लोकल लाइब्रेरी है, जिसका जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ग्रुप लाइब्रेरीज का, जिसमें आपका जो डेटा सारा है वो क्लाउड में स्टोर होता है, जो आपको फ्री स्टोरेज मिलता है। तो इसमें जितने भी आप ग्रुप्स जिसमें आप मेंबर होंगे या आपने क्रिएट किए हैं वो आपके सारे ग्रुप्स यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद जो माई लाइब्रेरी है, इसमें जितने आपने कलेक्शंस क्रिएट किए हैं, कलेक्शन मीन्स के फोल्डर जिसमें आपने स्पेसिफिक
आर्टिकल्स को ऐड किया है। उसके बाद माई पब्लिकेशन एंड डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डुप्लीकेट, बट आपको डिलीट करने पड़ते हैं। डुप्लीकेट डिटेक्शन और डुप्लीकेट्स रिमूवल इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट फॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपने चीज़ें डिलीट कर दी हैं एक्सीडेंटली, तो आप उनको रिकवर भी कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। ग्रुप लाइब्रेरी से पहले हम बात करते हैं कि न्यू कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है। उसमें आर्टिकल्स को डिफरेंट आइडेंटिफायर्स से डिफरेंट वे से कैसे ऐड कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स को। लाइक हम न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन माई लाइब्रेरी इफ यू वांट टू क्रिएट लिंक एनी कलेक्शन इन योर कंप्यूटर स्टोरेज। क्लिक ऑन न्यू स्टोरेज। आपके जिस भी आर्टिकल पे आप काम कर रहे हैं, जो भी कलेक्शन का नेम रखना चाहते हैं, लाइक वी आर वर्किंग ऑन डेमो, तो इसका नाम मैंने रख दिया क्रिएट कलेक्शन। किस में ये क्रिएट करना है, माई लाइब्रेरी में या किसी फोल्डर में सब फोल्डर बनाना है, तो मैं ये इंडिपेंडेंट फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड देन आपने आर्टिकल्स को कैसे ऐड करना है, देयर आर लॉट ऑफ वेज। लाइक ये न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे आप, इफ यू आर एडिंग बुक सेक्शन, डॉक्यूमेंट, जर्नल आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी इवन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट, केस कॉन्फ्रेंस, पेपर, डिक्शनरी, ईमेल को भी साइड कर सकते हैं। मैगजीन आर्टिकल, योर अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट, योर पेटेंट, योर प्री प्रिंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ अवेलेबल आपके पास सोर्स है, आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। बट जो ये डेटा होगा सारा आपने मैन्युअली पुट करना है। लाइक आई विल क्लिक ऑन द जर्नल आर्टिकल, तो इट विल शो अ पैन, साइड पैन, जिसमें आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लाइक ये मैनुअली अगर आपने क्रिएट करना है सारा डेटा, आपने जर्नल उसका टाइटल ऐड करेंगे, देन ऑथर डिटेल्स ऐड करेंगे सारे ऑथर्स की, ठीक है। तो ये एक मैनुअल जनरेट करने का है, लेकिन हमने मैनुअली जनरेट नहीं करना, इसीलिए तो हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस मकसद के लिए, इसका मकसद ये है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स को आप साइट करना चाहते हैं, लाइक आपकी असाइनमेंट है विच इज़ नॉट अ पब्लिश्ड थिंग, उसको साइट करना है आपने, एज अ रेफरेंस ऐड करना है किसी ऐसी चीज़ को जो कि नॉर्मली पब्लिश नहीं होती जर्नल में, और उसका कोई आइडेंटिफायर नहीं होता। मसला आइडेंटिफायर का है कि उसको डीओआई नहीं मिला, और उसके पास पीएमसी या पीएमआईडी नंबर भी नहीं है उसका, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए ये डिफरेंट वेज हैं फ्रॉम हियर। लाइक यूरोपियन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है, जिसमें कोई आइडेंटिफायर नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, तो आप उनके साइटेशंस को मैनुअली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू आर रेफरिंग टू एन ईमेल और एनीथिंग जो कि पब्लिश्ड तो नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफायर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप इस जो ऐड आइटम है इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद यू हैव अ मैजिक आइडेंटिफायर, जिसमें ये मैजिक फॉन्ट का एक बना हुआ है, जिसमें आईएसबीएन जो कि पब्लिशर नंबर होता है बुक्स के लिए, एंड देन यू हैव अ डीओआई नंबर्स विच आर फॉर आर्टिकल, एंड देन पीएमआईडी विच इज़ अवेलेबल फॉर पबमेड आर्टिकल्स। इसके अलावा बिग बोर्ड्स एटसेट्रा जितने भी अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, उनके ज़रिए आइडेंटिफायर्स के ज़रिए आप आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं। सो हम ऐड करते हैं पबमेड से किसी भी आर्टिकल को। मुझे कोई अच्छा सा टॉपिक बताइए जिसके बारे में हम आर्टिकल्स को ऐड कर सकें। इसमें टाइप इन द चैट बॉक्स। चलें सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर के बारे में ही हम बात करें। मेरे ख्याल से ऑडियंस रिस्पॉन्सिव नहीं है, काइंडली इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप साथ साथ भी पूछ सकते हैं, एट द एंड भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये फर्स्ट आर्टिकल ही देख लेते हैं। ये प्रोटीन सेल 2022 में पब्लिश हुआ है। इसके आर्टिकल का टाइटल, ऑथर्स के नीचे कुछ आइडेंटिफायर्स या नंबर हमें मिलेंगे, जिनको हम देख लेते हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ आर्टिकल, कार्डियो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ सोडियम ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स अगेंस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज थ्रू रिडक्शन ऑफ आटोसिस। इसके लिए हमारे पास तीन आइडेंटिफायर्स हैं। फर्स्ट वन इज पीएमआईडी,
other one is PMCID, and third one is DOI. DOI is a universal number. जो आर्टिकल पबमेड इंडेक्स नहीं होते उनका DOI होता है, हम उनको DOI से ऐड कर सकते हैं। सिंपली DOI को कॉपी करेंगे, देन क्लिक ऑन द मैजिक फॉन्ट ऑप्शन एंड पेस्ट। पूरा जो आपका DOI.org/नंबर भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके जरिए भी आपका आर्टिकल इसमें ऐड हो जाएगा। लाइक कि जैसे ही हमने आइडेंटिफायर को ऐड किया है, आइडेंटिफायर से आर्टिकल आ गया है हमारे पास, उसका क्रिएटर, ऑथर, ये जो डिटेल हमने मैनुअली ऐड करनी थी, वो सारे ऑथर्स के नेम, देन पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू, पेजेस, डेट, जर्नल की एब्रीविएशन, जितने भी सोर्सेज थे हमारे पास आ गए हैं। उसका इवन एब्स्ट्रैक्ट भी हमारे पास आ गया है। इसका अगर फुल टेक्स्ट फ्रीली अवेलेबल हो तो वो भी आ सकता है फ्रॉम क्लिकिंग ऑन फाइंड फुल टेक्स्ट ऑप्शन। अगर ये होगा फ्रीली अवेलेबल ऑन साइट तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका फुल टेक्स्ट इज़ फ्रीली अवेलेबल। जैसे ही अटैचमेंट के ऑप्शन पे आप देखेंगे, आपको फ्री जो टेक्स्ट PDF का ऑप्शन है ये नज़र आ जाएगी। इट मीन्स दैट दिस आर्टिकल इज़ फ्रीली अवेलेबल। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आर्टिकल के ऊपर तो आपके पास आपका सारा PDF शो हो जाएगा। तो ये वही आर्टिकल है इन द फॉर्म ऑफ PDF, जो कि हमने ऑलरेडी ऐड किया है अपने पैरों में थ्रू आइडेंटिफायर। हम सेम आर्टिकल को डिफरेंट आइडेंटिफायर से भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने इसको PMID के थ्रू ऐड करना है, तो यू विल सिंपली कॉपी द PMID, क्लिक ऑन द मैजिक ऑप्शन एंड क्लिक एंटर। Multiple DOIs and multiple PMIDs can also be searched at a time, but they should be separated by enter, और वो नेक्स्ट लाइन पे होने चाहिए। लाइक आपने बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड करना है एट वंस, तो उन सबके PMIDs या DOIs आप उनको लिस्ट में अरेंज करें, और हर सेपरेट लाइन पे सेपरेट आर्टिकल का आइडेंटिफायर हो और सिमिलर आइडेंटिफायर्स हो। ये ना हो एक का DOI और दूसरे का PMID ऐड किया हो, इसके लिए आपको मल्टीपल आर्टिकल्स को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लाइक दूसरे आइडेंटिफायर से हमने इस आर्टिकल को इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा जी, ठीक है। किसी ने कहा कि आर्टिकल को ऐड करने वाला स्टेप्स रिपीट कर दें, तो फर्स्टली जो हम आर्टिकल्स हैं वो ऐड कर रहे हैं थ्रू आइडेंटिफायर। यूनिवर्सल आइडेंटिफायर जो हमारे पास है, दिस इज़ DOI, हम DOI के थ्रू ऐड करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं लाइक PMCID एंड PMID नंबर, इनके जरिए भी आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं। आपने अपने जोटारो में आना है, मैजिक के ऑप्शन को क्लिक करना है, अपने DOI को, अपने जो भी आइडेंटिफायर है PMID, उसको सिंपली पेस्ट करके एंटर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर किसी को और इश्यू हो तो मुझे बता दीजिएगा सो दैट मैं इसको रिपीट कर दूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने PMID के जरिए ऐड किया आर्टिकल को, DOI के जरिए आर्टिकल को ऐड किया है। थर्ड वे इज टू ऐड आर्टिकल थ्रू इट्स PDF। हमारे पास आर्टिकल का PDF अवेलेबल है, हमारे पास कोई आइडेंटिफायर नहीं है, हम उसको कैसे ऐड करेंगे अपनी लाइब्रेरी में? यू विल डाउनलोड द आर्टिकल। किसी दूसरे आर्टिकल को ऐड कर लेते हैं। सिंपली जो भी आपने PDF ऐड करना है उस PDF
को आपने ड्रैग करना है एंड ड्रॉप इनटू द लाइब्रेरी जिसमें इसको ऐड करना है। लाइक जो डेमो लाइब्रेरी मैंने क्रिएट की है मैंने इसी में ऐड करना है इसको। तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आर्टिकल ऐड तो हो गया है, ये वर्क कर रहा है। साथ ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आर्टिकल आप पीडीएफ के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। लाइक इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ये खुद ही कैप्चर कर लेगा। लाइक इट वाज ऑन, हाँ ये पब्लिश्ड है, इसका आईएसएस नंबर क्या है, यूआरएल क्या है, एंड इसका एब्स्ट्रैक्ट एंड देन इसकी फ्री पूरी फाइल। अगर पीडीएफ ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी पूरी की पूरी फाइल ही आ जाएगी। लाइक ये आर्टिकल है, ये हमने ऐड किया है। अ, तो ये सारा आर्टिकल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं। उसके अलावा कैसे आप आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, लाइक यू वांट टू ऐड मल्टीपल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू योर लाइब्रेरी। अपनी अपनी सर्च स्ट्रेटजी बनाई है, अपने आर्टिकल्स को एक्सपोर्ट करना है। तो आप सारे जितने आर्टिकल्स आपको चाहिए, लाइक मुझे मैंने जिन आर्टिकल्स को सेलेक्ट करना है, लाइक फर्स्ट 3 or 4 आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर माई रिव्यू, तो मैं उन आर्टिकल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। मेटा एनालिसिस में आप पूरी की पूरी सर्च स्ट्रेटजी जितने आर्टिकल्स आते हैं सारे एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें हम एग्जांपल के लिए 8 आइटम्स को हमने सेलेक्ट किया है। तो यू विल क्लिक ऑन सेंड टू ऑप्शन एंड देन यू विल क्लिक ऑन साइटेशन मैनेजर सेलेक्शन। 8 सिलेक्शन करने हैं, ऑल रिजल्ट्स हैं, ऑल रिजल्ट्स ऑन दिस पेज। तो इस पेज के ऊपर मेरे ख्याल से 25 या 20 आर्टिकल्स हैं, तो उनको एक्सपोर्ट करते हैं। यू विल क्रिएट अ फाइल ऑफ द आर्टिकल्स। तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो डॉट एन भी होगी फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी के लिए। जो ये फाइल है आपके पास, तो इसको आपने ऐड करना है सिंपली। यू विल हाउ विल यू इंपोर्ट दिस टाइप ऑफ फाइल जो आपने फॉर्मेट से एमबेस से कॉकरेन से की है। तो यू विल क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन इम्पोर्ट फाइल। आप सेलेक्ट करेंगे किस फॉर्मेट में है, जिस भी फॉर्मेट में आपने आई है आपने उसको कर लेना है। देन जहाँ पे आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है, इस केस में हमारी जो फाइल है ये पबमेड SGLT2 इनहिबिटर सेट डॉट एन बी फाइल है। प्लेस, अच्छा इसमें ऑप्शंस आएंगे कि इस फाइल को प्लेस इंपोर्टेड कलेक्शंस टू अ न्यू आइटम। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जिस फाइल को आपने क्रिएट किया है सारे आर्टिकल उसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको यू विल क्लिक नेक्स्ट। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं इट विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑल द आर्टिकल। 10 आर्टिकल इसमें हैं, तो ऑल 10 आर्टिकल्स आर एक्सपोर्टेड इनटू Zotero एट वंस। ठीक है, इसमें पीडीएफ्स को कैसे ऐड करना है, यू विल क्लिक सेलेक्ट ऑल ऑप्शन, यू विल क्लिक राइट एंड यू विल सी फाइंड फुल टेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यू विल क्लिक फाइंड फुल टेक्स्ट। तो इट विल स्टार्ट सर्चिंग द फुल टेक्स्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स जो कि साई हब पे या जिनका जो पीडीएफ है वो फ्रीली अवेलेबल है या लाइक दे आर पब्लिश्ड इन ओपन एक्सेस। अच्छा जी, जैसे ही जितने ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फाइंड फुल टेक्स्ट, ये फुल टेक्स्ट बैकग्राउंड पे भी इसको सर्च करता रहेंगे। Because when you are working on a meta analysis you have to export all the articles जो कि सर्च स्ट्रेटेजी के बाद आपके पास आते हैं। तो हमें सारे आर्टिकल्स को ऐड करना पड़ता है। तो ये था कि अगर आपने हैंड सर्च कर रहे हैं आर्टिकल्स को सिंगल बाय सिंगल ऐड करना है, वन बाय वन, तो इसके लिए आप डिफरेंट आइडेंटिफायर्स यूज़ करेंगे। बट अगर आपने जित सारे के सारे आर्टिकल्स एक्सपोर्ट करने हैं, लाइक मेटा एनालिसिस की सर्च स्ट्रेटेजी में आपके पास बड़े थोड़े से आर्टिकल्स आते हैं, हज़ारों में नहीं होते, हंड्रेड्स में और इवन कुछ 100 200 300 400 इतने होते हैं फ्रॉम अ सिंगल डेटाबेस। तो आप उन सारे आर्टिकल्स को ही सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं और स्क्रीनिंग में एक्सक्लूड करते हैं उन आर्टिकल्स को।
Sorry to interrupt, but there is a question in the chat box by Afeen Mujib. She is asking, sir, why you selected all those articles at once? मैं अभी उनके क्वेश्चन के बारे में ही बात कर रहा था कि जब आप मेटा एनालिसिस पे काम कर रहे होते हैं तो आपको सारे आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है एट वंस। लाइक आप इसमें फ़िल्टर ऐड कर देते हैं कि जिनके फुल टेक्स्ट अवेलेबल हैं और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं एंड दे आर पब्लिश्ड इन लास्ट 1 ईयर। तो ये हमारे पास अभी भी 5000 आर्टिकल्स हैं। लाइक इसको हम मज़ीद नैरो डाउन कर देते हैं इन अ सिंगल ईयर कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, adding a one more filter. Acha, we have 846 articles. So if you are working on a meta-analysis, you have to export all the articles which you retrieve on your detailed search strategy or search string. तो उसके लिए you will use the send to option. When you will click on send to, you will see the citation manager option. Click on citation manager, click all the results and click create file. तो आपकी जो सारी फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। And you can add all the article at once. Like 846 articles को वन बाय वन ऐड करेंगे तो it will take a week almost। बाकी सारे काम करने के साथ साथ आप इसको ऐड करेंगे तो एक सिंगल क्लिक में आप सारे आर्टिकल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आर्टिकल्स ऐड हो गए हैं। सेकंड ऑप्शन इज दैट फुल टेक्स्ट कैसे सर्च करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें आप नोट्स ऐड कर सकते हैं अपने, एनोटेट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं इसमें। लाइक हैं यू वांट टू साइट इन योर आर्टिकल लेटर, कि आपने ये आइडिया एक जगह से लिया है तो यू कैन हाईलाइट अंडरलाइन या इसमें टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं या स्टिकी नोट्स एटसेट्रा सारे ऐड कर सकते हैं इसमें। लाइक क्या आपने इंट्रोडक्शन में से कोई सोर्स है, आपने इंट्रोडक्शन में से यहाँ से कोई आइडिया लिया है और आपने बाद में इसको पैराफ्रेज करना है तो आप हाईलाइट कर देंगे तो ये आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ से डेटा लेना है। और मैं जो प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा था, प्राइमरी सोर्स ये है कि द आर्ट जो फर्स्ट करें ये लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 1 फंक्शनल आउटकम ऑफ लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस आफ्टर फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन, ये यहाँ से लिया है। तो मैं आज जो ये आर्टिकल है मेरा हीरा अकबर अकबर एट अल, मैं इस आर्टिकल को साइट नहीं करूंगा बिकॉज ये डेटा इस आर्टिकल ने प्रोड्यूस नहीं किया। जो ये बैकग्राउंड में हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ये मैंने लाइंस अंडरलाइन की हैं, ये लाइंस जिस ऑथर ने लिखी हैं वो ऑथर ये है, ये प्राइमरी ऑथर है। हम इस प्राइमरी ऑथर को ही इसमें साइट करेंगे विच इज रेफरेंस नंबर 1। तो हम इस आर्टिकल को लेंगे, सर्च करेंगे और इसको साइट करेंगे बिकॉज सारे का सारा क्रेडिट इसका है, सेकेंडरी सोर्सेज को साइट नहीं करेंगे। हाँ, अगर जो मेरी रिजल्ट सेक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं इस स्टडी की, वो आपने साइट करनी है तो इसके लिए आपको जो रेफरेंस है वो इसी आर्टिकल का ऐड करना चाहिए विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अदरवाइज साइटेशन जो है वो पता नहीं चलता 2-3 सोर्सेज के बाद अल्टीमेटली कि वो ओरिजिनल आइडिया क्या था, आप सर्च करते हैं तो आपको कोई भी नहीं मिलता। ठीक है, इसमें हम साइट कैसे करेंगे। अच्छा, डुप्लीकेट रिमूवल का एक ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिक ही होता है इसका। यू विल क्लिक ऑन द डुप्लीकेट आइटम्स एंड यू विल सी द डुप्लीकेट आर्टिकल्स। जैसे ही क्लिक करेंगे देयर विल बी ऑप्शन ऑफ मर्ज टू आइटम एंड यू विल क्लिक ऑन मर्ज एंड देन जो बाकी आइटम्स हैं ये अल्टीमेटली सारे आर्टिकल्स को मर्ज करते जाएंगे तो आपके डुप्लीकेट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही किसी लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे यू विल सी नंबर ऑफ आइटम्स इन द लाइब्रेरी। यू कैन क्रिएट सब कलेक्शंस जिसमें एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड इफ यू आर स्क्रीनिंग आर्टिकल्स ऑन Zotero यू कैन इंक्लूड। जैसे किसी लाइब्रेरी पे जाके आप क्लिक करेंगे न्यू सब कलेक्शन का, लाइक मैंने इंक्लूडेड आर्टिकल्स को अलग करना है, एक्सक्लूडेड आर्टिकल्स को अलग रखना है, तो आप इंक्लूडेड का फोल्डर क्रिएट कर देंगे विच इज़ अ सब कलेक्शन एंड यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द आर्टिकल्स विच यू आर गोइंग टू ऐड इन द सब फोल्डर। तो ये आर्टिकल इस सब फोल्डर में आ जाएगा। यू कैन ऐड टैग्स, लाइक इसमें नोट ऐड कर सकते हैं, एनोटेशन ऐड कर सकते हैं, आप इस आइटम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये सारे ऑप्शन यू देखिएगा, इनको प्ले विद द थिंग्स एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एज वेल। अल्टीमेटली जो मेन काम है हमारा, हाउ विल वी साइट था, तो इसके लिए हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि हमने आर्टिकल्स को साइट कैसे करना है, रेफरेंसेस की सारी लिस्ट कैसे ऐड करनी है, और उनको रेफरेंसेस अगर एक स्टाइल में हमारे पास ऐड हो गए हैं और वी वांट टू सबमिट द सेम आर्टिकल इनटू अनदर जर्नल जिसकी अपनी गाइडलाइंस हैं, तो देन आप क्या करेंगे? लाइक इसी आर्टिकल को देख लेते हैं। अच्छा, इस आर्टिकल में हमारे पास फर्ज करें, यहाँ से ये आइडिया हमने लिया है, आई एम कॉपिंग इट। कॉपी नहीं करना है, इसको पैराफ्रेज करना है, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम इसको पैराफ्रेज नहीं करते, अभी तो हम क्या करेंगे, ये आइडिया मैंने किसी आर्टिकल से लिया है और उस आर्टिकल को मैंने साइट करना है। तो ये आइडिया मैंने पैराफ्रेज कर लिया, पैराफ्रेज करने के बाद एट द एंड मैं क्या करूँगा, जोटेरो को आपने ओपन रखना है। जोटेरो को ओपन किए बगैर यू कैन नॉट ऐड अ सिंगल रेफरेंस। जोटेरो को जो टैब है ऑटोमेटिकली आपके वर्ड में, वर्ड प्रोसेसर में ऑटोमेटिकली ऐड आ जाएगा। इसमें तीन ऑप्शंस आपके पास होंगे, ऐड साइटेशन, add bibliography, insert notes, document references, refresh and unlink citation। हम सबको आहिस्ता एक एक करके यूज करेंगे। साइटेशन ऐड करने के लिए यू विल क्लिक ऑन ऐड एडिट साइटेशन। जैसे ही आप ऐड करेंगे, आपके पास जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि आपने साइटेशन स्टाइल कौन सा यूज करना है, व्हाट विल बी योर डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टाइल्स, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, मेडिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शिकागो, साइट देम राइट, हार्वर्ड एडिशन, एंड देन जो सबसे वैंकोवर है, वैंकोवर सर्बियन आर्काइव्स ऑफ मेडिसिन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का अपना है, स्प्रिंगर का है, एंड देन नेचर का स्टाइल है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो हम वैंकोवर यूज करते हैं। वैंकोवर की एक बिगड़ी हुई शक्ल वैंकोवर एल्सवियर का, एल्सवियर का वैंकोवर है जिसमें डीओआई और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो हम वैंकोवर एल्सवियर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल सी द आर्टिकल, जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो दो डॉक्यूमेंट्स ये हैं। आप उन आर्टिकल्स का लाइक किसी ऑथर का नाम सर्च भी कर सकते हैं, लाइक ये मैंने अकबर सर्च किया है तो मेरे पास जो आर्टिकल है, इट विल स्टार्ट सर्चिंग इन लाइब्रेरी कि अकबर के ऑथर के नाम से कोई आर्टिकल है या नहीं है। तो मेरे पास किसी भी ऑथर का नाम अगर अकबर है तो वो आ जाएगा। ऑथर के नाम से भी आप आर्टिकल को इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव एक आर्टिकल था हमारा, मैंने कार्डियो प्रोटेक्टिव लिखा, लाइक ये वहां से लिया था तो मैंने उसको साइट करना था, तो मैं क्या करूँगा, कार्डियो प्रोटेक्टिव आई विल सर्च, तो ये मुझे सर्च करके दिखा देगा कि कितने आर्टिकल्स मेरी लाइब्रेरी में कार्डियो प्रोटेक्टिव नेम से हैं। लाइक जोटेरो में मैंने ये हाईलाइट किया था, जो ये मेरा आर्टिकल है ये अकबर एट अल से लिया है मैंने, तो मैं इसी सोर्स को साइट करूँगा। आई विल क्लिक ऑन प्रेवलेंस ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइलेटस, यही आर्टिकल साइट करना है, इस पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक एंटर। तो जो ये नंबर वन आपके पास साइटेशन ऐड होगी। अनदर रेफरेंस ऐड करते हैं इसमें, दूसरे आर्टिकल से जो कार्डियो प्रोटेक्टिव वाला जो हम देख रहे हैं, बैकली क्लोजिंग वाला, हमने हमें ये आइडिया लिया है, इस आइडिया को हमने साइट करना है। वी आर नॉट कॉपिंग, फर्ज कर लेते हैं कि हमने ये पैराफ्रेज किया है ये आइडिया और हमने इस आइडिया को ऑथर को सपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उस ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देंगे। आर्टिकल जहाँ जब भी आपने कोशिश करनी है कि एंड पे ही ऐड करें, एट द एंड ऑफ योर लाइन या आइडिया मिड में ऐड नहीं करें, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, अच्छा नहीं लगता विजुअली। लाइक ये कार्डियो प्रोटेक्टिव आर्टिकल इसमें से लिया है, यू विल क्लिक ऑन दिस जियांग एट अल, ये आ गया है। अच्छा जी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली नंबर 2 कर देगा। इसके बाद आप कोई भी रेफरेंस ऐड करेंगे इट विल बी नंबर 3। ठीक है, लाइक आप मिड में, आपने ये दो रेफरेंसेस ऐड कर दिए हैं लेकिन एक रेफरेंस आप मिड में ऐड करना चाहते हैं, अ, तो आप फर्ज करें यहाँ पे एक रेफरेंस मजीद आपने ऐड करना है, एक न्यू लाइन ऐड की है, तो तब आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक
कि आपने यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है। अब आपको लग रहा होगा कि नंबर 1 नंबर 2 है, यहाँ पे आर्टिकल ऐड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, नंबरिंग गलत हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। रेफरेंस मैनेजमेंट का फायदा ही यही होता है आपके पास। लाइक एक थर्ड आर्टिकल है, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी में। आई वॉन्ट टू साइट, तो जो ये आर्टिकल है, बिकॉज दिस इज नंबर 1, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर 2 हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये थोड़ा सा शेडेड नजर आएगा। इट मीन्स दैट इट इज द साइटेशन इज कनेक्टेड, दीज साइटेशंस आर इंटरकनेक्टेड। अच्छा, अब आपको लिस्ट कहीं पे नजर नहीं आ रही, कि लिस्ट नजर नहीं आ रही, आपने रेफरेंसेस तो ऐड कर दिए हैं, देयर इज नो लिस्ट, तो आप ये लिस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आती। यू विल ऐड हेडिंग रेफरेंसेस या जो भी नाम आपने इसको देना है। उसके बाद जहाँ पे आप रेफरेंस की लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, यू विल क्लिक ऑन ऐड बिब्लियोग्राफी, click add edit bibliography and your whole list of references will be pasted here। ठीक है जी। अब ये लिस्ट तो पेस्ट हो गई। अब आपको याद आया कि ये इसका स्टाइल चेंज करना है, तो ये तो गलत स्टाइल है, एल्सवेयर का नहीं यूज़ करना, एपीआई या एएमए स्टाइल यूज़ करना है। तो यू विल क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस। अच्छा जी, यहाँ पे स्टाइल्स आ गए हैं, इसको हमने अमेरिकन एएमए में ऐड करना है, तो यू विल क्लिक ऑन एएमए and then you will click OK। तो द रेफरेंसेस विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। एएमए में जो आपके पास इन टेक्स्ट साइटेशन होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो आर्टिकल्स हैं, इसमें फर्स्ट जो 3 ऑथर्स हैं उनका नेम है, लाइक जो सेकंड नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर, सेकंड नेम ऑफ द सेकंड ऑथर, थर्ड एंड फोर्थ ऑथर, इसमें चारों आ गए हैं। अगर 4 से ज़्यादा ऑथर्स होंगे तो जो फर्स्ट 3 ऑथर्स होंगे, लाइक ये हमारा अपना आर्टिकल था, तो इसमें ये 3 तक इसको इसने साइट किया है, लाइक नूरो एन एन यू। लाइक इसमें जो सेकंड नेम है वो पहले आता है, बाकी जो आपके इनिशियल्स हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास उसका पूरा टाइटल आता है, देन ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, देन इशू, पेजेस एटसेट्रा एंड डीओआई। तो इसमें डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस पे अगेन क्लिक करते हैं और वैंकोवर स्टाइल को चूज करते हैं, जो कि सिंपल वैंकोवर स्टाइल है। तो यू विल सी कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये खुद ही चेंज हो जाएगी इसमें। जो इसमें सारे ऑथर्स के नाम आ रहे हैं, इसमें 4 या 5 ऑथर्स के नाम आ रहे हैं, फिर एट अल आ रहा है, और इसमें जो डीओआई है वो नहीं आ रहा। ठीक है, जो ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में आ रहा है, इसको हम अगेन चेंज करते हैं एंड देन स्प्रिंगर में, या इसको हम एएमई में, एपीए में लेके चलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यू विल क्लिक, तो इसमें आपके पास जो इंटेक्स्ट साइटेशंस हैं, वो ऑथर्स, फर्स्ट ऑथर का जो लास्ट नेम है उसके साथ ऐड की जाती हैं विद द ईयर। तो ये अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और इसमें ये इंडेंटिंग भी होती है थोड़ी सी। डी वाई इज एसेंशियल, और बाकी ऑथर्स के इनिशियल्स ऑलमोस्ट सारे ऑथर्स के ऐड हो जाते हैं इसमें। तो ये सारा कुछ अकॉर्डिंगली आपने देखना है, सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। उसके बाद अगर आपने साइटेशंस को अनलिंक करना है, यू विल क्लिक ऑन अनलिंक, और जो आपने सारा काम किया है वो खराब हो जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद वाले जो आर्टिकल्स हैं, जो बाद वाला काम होगा सारा, वो आपका डिसकनेक्टेड होगा। लाइक आपने न्यू रेफरेंसेस ऐड किए तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं स्टाइल। तो इसमें ये बहुत बड़ा इसका फीचर है कि जिसमें आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग और मल्टीपल लोगों के काम को कंबाइन करके, यू विल सिंपली क्लिक ऑन कंबाइन ऑन रिफ्रेश, तो आप ऐड कर सकेंगे। अच्छा, एक ऑप्शन, एक और बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, वो ये है कि अगर आपने एक ही जो आइडिया है, लेट्स सपोज दिस आइडिया इज प्रपोज्ड बाय 2 और 3 आर्टिकल्स, एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा आर्टिकल्स ने किया है, तो उनको साइट कैसे करेंगे, या जो साइटेशन ऐड कर दी है उसको एडिट कैसे करेंगे। यू विल क्लिक ऑन एडिट, और इसको आप रिमूव करना चाहेंगे, इसकी जगह कोई और आर्टिकल ऐड करना चाहें, इसके अलावा क्लासिक व्यू में भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक आई क्लिक on the esophagitis, I have different articles। I clicked on the second article, इसको मैंने ऐड कर दिया है, मैंने साइटेशन को रिप्लेस कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे भी रिप्लेस उसी जगह पे हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, ये हो जाता है ऑटोमेटिकली, सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। यहाँ पे आपने एक और जो ऑथर है उसको भी मेंशन करना है, लाइक 2 आर्टिकल्स हैं, तो आपने इसी जगह पे जब एक आर्टिकल को ऐड करना है, यू विल ऐड स्पेस एंड देन यू विल क्लिक नेक्स्ट आर्टिकल,
अगर आपने तीसरा आर्टिकल यहाँ पे ऐड करना है, यू विल ऐड स्पेस एंड देन यू कैन सेलेक्ट अनदर आर्टिकल, यू कैन साइट एज मैनी आर्टिकल्स एज यू वांट। एंड जब आपने सारे आर्टिकल्स साइट कर दिए हैं, यू विल क्लिक एंटर, तो ये सारी नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। लाइक इसकी हम इसको अगेन वैंकूवर में लेके जाते हैं, एल्सवेयर वैंकूवर, एंड यू विल सी। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल आर्टिकल्स हैं जो आपने ऐसे ऐड करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो साइटेशन जब ऐड करते हैं, उन्हें एक साइटेशन ऐड करने के बाद दूसरी उसके अंदर ऐड नहीं करते। वो क्या करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे तीसरी साइटेशन ऐड करनी है, वो उसके साइटेशन के आगे क्लिक करेंगे और अगले आर्टिकल को वहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो इसके अंदर ही हो रही है ऐड। लाइक कि आपने और आर्टिकल है उसके साथ ऐड करना है, तो डिफरेंट दो स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं बनानी, इसकी एक स्क्वायर ब्रैकेट बनानी है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। 1 2 अलग ब्रैकेट में है और 3 जो है वो अलग ब्रैकेट में है, और इनको आपने इसकी ब्रैकेट्स ऐसे ख़त्म करके भी नहीं इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करनी। आपने जहाँ पे ऐड किए हैं वहीं पे इसको क्लिक करेंगे, शेडिंग आ जाएगी, एडिट पे क्लिक करेंगे, न्यू आर्टिकल, स्पेस पे क्लिक करेंगे, तो यू कैन ऐड अ न्यू आर्टिकल, यू कैन ऐड थ्रू क्लासिक व्यू। मैंने ऐड किया न्यू आर्टिकल, और यस, ये इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इन आर्टिकल्स को साइट करना है, यानी कि वो डेटा जो है वो इसके अंदर ही आर्टिकल्स आने चाहिए, इसके बाहर आपने अलहदा से हर एक एक की साइटेशन नहीं करनी। जो मल्टीपल आर्टिकल्स हैं उनको एक ही जगह पे साइट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। गूगल डॉक्स पे भी सेम है। अगर आपने वेब पेज कैप्चर करके करना चाहते हैं, लाइक आपने कोई न्यूज़पेपर है, आपने न्यूज़पेपर से ऐड करना है, लाइक कि एक ये न्यूज़पेपर से आपने कोई आर्टिकल लिया है। अब न्यूज़पेपर का कोई डीओआई नहीं होता, न्यूज़पेपर को आप पीडीएफ भी नहीं होता इनका। अब क्या करेंगे, हम इसको साइट करना है, तो आपने जोटेरो कनेक्टर को इंस्टॉल करना है। जोटेरो कनेक्टर वेब पेज का स्नैपशॉट लेगा। वेब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सेव टू द जोटेरो, पूरी वेबसाइट को जैसे ही आप लोड होने देंगे, वेबसाइट लोड होने के बाद यू विल क्लिक ऑन द जोटेरो कनेक्टर, जिसकी साइट जो आपके पास अवेलेबल है, इंटीग्रेशन या प्लगइन अवेलेबल है। तो इसमें आप देख लें कहाँ पे ऐड करना है। यू विल सेलेक्ट द लाइब्रेरी। लाइक इसको मैं डेमो में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया और इसका स्नैपशॉट हमारे पास ऐड हो जाएगा। वेब से स्नैपशॉट इज एडिट ओनली स्मॉल माइनॉरिटी। ये वेब पेज का स्नैपशॉट है, ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया है अटैचमेंट में। लाइक इस वेब पेज को हम साइट करेंगे, तो कैसे साइट करेंगे इसको, यू विल क्लिक ऑन ऐड साइटेशंस। बिकॉज हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यू कैन साइट दिस, तो ये इसके रेफरेंसेस भी अकॉर्डिंगली ऐड कर देगा। ये पूरी की पूरी नंबरिंग खुद ही चेंज कर देगा। यू कैन सी द फर्स्ट वन इज क्या है, वेबसाइट आ गई है, ऑथर्स का नाम नहीं है इसमें, वेबसाइट, एंड देन कब इसको एक्सेस किया है तो आ जाएगा। इफ यू वर्किंग, इफ यू वांट टू एक्सेस समथिंग दैट इज नॉट अवेलेबल, दैट हैज नो आइडेंटिफायर एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। अच्छा, इसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, लाइक हाउ कैन वी ऐड सम प्लगइन्स। तो you will click on the tools option, you will click plugins, and you can see that you can click on setting and you can install plugin from files। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जो मेन काम है आप इसका, यस यस, रिकॉर्डिंग्स हैं, आप ले सकते हैं अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके। ठीक है, प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ग्रुप क्रिएट करने वाला, वो हमने डिस्कस नहीं किया। यू विल क्लिक ऑन ग्रुप लाइब्रेरीज, लेकिन इससे पहले आपको इसको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करेंगे तो देन ही आप इसको
सॉरी फॉर द ग्लिच अगेन, होपफुली आपने कुछ मिस नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा जी, रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, गूगल स्कॉलर के बारे में थोड़ी सी हम ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद गूगल स्कॉलर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अ, अच्छा जी, आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है जोटेरो का। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने फ्री रजिस्टर कर लेना है, अगर है तो आपने साइन इन कर लेना है। लाइक मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, तो मैं इसको साइन इन कर लूँगा, तो जो मेरे जितने मेरे आर्टिकल्स हैं वो किसी भी वेब पेज पे आप अवेल कर सकते हैं। न्यू ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप लाइब्रेरीज बना सकते हैं, टीममेट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय द जितने भी इसके फीचर्स हैं। लाइक कि जो जोटेरो मेरे पास एप्लीकेशन में था वही मेरे पास है और मेरा सारा डेटा सिंक्ड है। ठीक है, इसमें मैंने ग्रुप्स का ऑप्शन होगा आपके पास, वेब पे जाके न्यू ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास सारे ग्रुप्स हैं। आपके पास ग्रुप इन्विटेशंस भी आएंगे, ग्रुप इन्विटेशंस में क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, सारी लाइब्रेरी आपके पास सिंक हो जाएगी। क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यू कैन क्रिएट अ न्यू ग्रुप, ऐड मेंबर्स यूजिंग ईमेल एड्रेस जिस पे वो रजिस्टर्ड हैं। आर्टिकल ऐड करेंगे और सारे ही उस उन आर्टिकल्स को पेस्ट करेंगे। जैसे आप इसका नाम नाम बना लें, देन क्रिएट द ग्रुप, मेंबरशिप उसकी क्लिक करें, सेव करें एंड देन यू कैन शेयर द मैनेज मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। हाउ विल यू ऐड मेंबर्स, सेंड इनविटेशंस, यू कैन सेंड इनविटेशंस थ्रू ईमेल। लाइक जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस है उसको ऐड करेंगे एंड देन सेंड इनविटेशन एंड यू कैन सेंड इनविटेशन टू मल्टीपल पीपल। ठीक है जी। यूज़र जो यूज़र नेम है उनके जरिए भी अगर आपने मल्टीपल लोगों को ऐड करना है, यू विल सेपरेट नेम्स बाय फोन। और इसके अलावा भी इसमें बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके आपको सारी एड्स ऑन के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, इसको चलाने के बारे में इसकी कोडिंग्स भी मिल जाएंगी, इसकी आपके पास जो प्लगइन्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे सारे। तो यू कैन एक्सेस एवरीथिंग फ्रॉम हियर Zotero मोबाइल। यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है, यू कैन क्लिक ऑन प्लगइन्स, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्लगइन्स लाइक एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, वेबसाइट इंटीग्रेशन। ये थोड़े से एडवांस ऑप्शंस हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। और डिफरेंट ऑफिसेज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शंस हैं कुछ इसमें, स्टाइल मैनेजर्स हैं, डेस्कटॉप के लिए कुछ वर्जन हैं, कुछ नाइट मोड है। इसमें आपके पास एक वो भी है जिसमें आप साई हब को इसके साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन वो ये था कि गूगल स्कॉलर से कैसे आर्टिकल्स को ऐड करना है। गूगल स्कॉलर इज लेस कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट इज़ नॉट अ डेटाबेस। गूगल स्कॉलर इज अ आपके पास दिस इज नॉट अ डेटाबेस, दिस इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन और डेटाबेस में फ़र्क है। डेटाबेसेस की इंडेक्सिंग होती है, उस गूगल स्कॉलर की कोई इंडेक्सिंग नहीं है। इसको आपने कभी डेटाबेस कह के अपनी जो आर्टिकल है उसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, हम सिमिलरली गूगल स्कॉलर पे कोई सर्च स्ट्रैटेजी का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए भी यूज़ नहीं करते आप। अच्छा जी, आपने इस आर्टिकल को अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम लाइब्रेरी को, यू विल क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। लाइक मैंने इसमें कलेक्शन बना लिया है, माई लाइब्रेरी में आर एन ए थेराप्यूटिक्स। इसमें आपने ऐड करते जाना है टू द कलेक्शन, या आपने मैनुअली ही ऐड करने हैं, इसका कोई तरीका नहीं है सारे आर्टिकल सेलेक्ट करने का, ना ही कोई सर्च स्ट्रेटजी है। तो आपने माई लाइब्रेरी पे क्लिक करना है जब आपने आर्टिकल्स एक्सपोर्ट करने हैं। ये एक्सपोर्ट ऑल द आर्टिकल्स किस फॉर्मेट में करने हैं, यू कैन बिबटेक्स एंड नॉट रेफमैन, यू विल ऑलवेज यूज रेफमैन बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल फॉर्मेट जिसमें आप साइटेशंस को ऐड कर सकते हैं इनटू योर Zotero। अच्छा जी, अगेन यू विल क्लिक ऑन न्यू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन नहीं, न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यू विल क्लिक ऑन फाइल, यू विल क्लिक ऑन इंपोर्ट एंड देन यू विल क्लिक नेक्स्ट। जहाँ डाउनलोडेड है जिस फोल्डर में, लाइक साइटेशंस डॉट रेसिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक नेक्स्ट एंड द आर्टिकल्स आर एडिड फ्रॉम गूगल स्कॉलर एज वेल। ठीक है जी, यू विल क्लिक ऑल द आर्टिकल्स एंड देन यू विल क्लिक फाइंड फुल टेक्स्ट, तो आपके सारे के सारे फुल टेक्स्ट फ्रॉम द साई हब विल बी एडिड हियर। ठीक है, तो ये सारे इसमें फीचर्स सिंपली आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी
मिली होंगी। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसके लिए? फोल्डर्स बनाएं, टैग्स ऐड करें, सिंक्रोनाइज करें, डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ करें इसको, हाइलाइट्स करें, नोट्स टेक कर सकते हैं आप, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ एनोटेटर है। सबसे बड़ी बात इसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्किंग है, लाइक गूगल डॉक से वर्ड और वर्ड से गूगल डॉक्स। एक 1 आवर और 2 आवर के लेक्चर में हम सारे फीचर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने फीचर्स हमें चाहिए हैं इसकी फुल फंक्शनैलिटी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो होपफुली जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपको समझ लगी होगी। एंड ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर एंड स्पेशल एक्नॉलेजमेंट्स सेंटर फॉर हेल्थ साइंसेज रिसर्च, एफएमएच मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आई वुड लाइक टू थैंक मिस नूरुल एंड सलीम एंड ईमान अहमद फॉर देयर invitation. I'm honored to be here with you. आपके साथ बात करके चीज़ें डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली इस तरह के जो प्रोडक्टिव सेमिनार्स हैं दे विल बी अरेंज्ड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर यू so that you may benefit and excel in research. Again, I would like to thank Ms. Nurul and Salim, Iman Ahmad and whole CHSR team and FMH College. Thank you very much. Thank you so much, Nabil, for such a thoughtful and insightful webinar for all of us. And after that, I would like to extend my gratitude to all the participants like who attended the session with so much effort. And we hope that you found the information useful. And inshallah ta'ala, you will feel more confident in managing your references and citations from now on. And with that, we are signing off from our today's webinar. See you next time. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you for your patient listening.